Hello, my dear student. In this question, it is mentioned consider following schedule as of transaction T1 or which of the following is statement is okay. Option A, schedule is conflict serializable but not recoverable. Schedule is not conflict serializable but it is recoverable. Schedule is both conflict serializable and recoverable. Schedule is neither conflict serializable and nor it is recoverable. Here it is mentioned read X, then write X, commit, then write X, write Y and read Z, then read X and read Y. So my dear student, first of all, we are trying to understand recoverable concept. What is the meaning of recoverable concept? If transaction T1 perform a write operation on data item X and transaction T2 read, then commit or rollback of T1 appear before commit of T2. This is the meaning of recoverable. The meaning of recoverable, mind. Or here, second one is what? Cascadeless. Write after that commit a rollback, then read is allowed. That is what? Cascadeless. And third one is what? Strict recoverable. If I perform write, then after commit a rollback read as well as write is allowed. Mean to say neither read is allowed nor write is allowed. That is called strict recoverable. Yeah, strict schedule. Okay. So first of all, we have to check uncommitted read. Here we have to check uncommitted read. For recoverable schedule checking, check write, then you can say uncommitted or dirty read. Uncommitted or dirty read. Uncommitted or dirty read. So here you can see this is the write. After that there is a read X. Yes, here. Here this is the write, but after that there is a read X. Yes, but what happened in the given schedule? In the given schedule, no uncommitted read. So it's recoverable, cascadeless. Here you can see it is recoverable because after write पहले कमिट हो रहा है, इसी के बाद ही रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म। आप इधर देख सकते हो, यहाँ आफ्टर राइट पहले कमिट हो रहा है, उसके बाद ही रीड या राइट परफॉर्म हो रहा है। इधर भी आफ्टर राइट पहले कमिट हो रहा है, उसके बाद ही अदर ट्रांजेक्शन रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इधर भी आफ्टर राइट कमिट हो रहा है, उसके बाद ही कोई अदर ट्रांजेक्शन रीड या राइट परफॉर्म कर रहा है। तो बेटा ये स्ट्रिक्ट रिकवरेबल भी है, इट्स स्ट्रिक्ट रिकवरेबल ऑल्सो। मैं आपको सारी डेफिनेशन बता दी है इधर। आप इधर देखिए स्ट्रिक्ट रिकवरेबल क्या बोलता है, अगर राइट किया है तो कमिट या रोल बैक के बाद ही रीड या राइट अलाउड, रीड या राइट अलाउड है। इट इज कॉल्ड strict recoverable also. Okay, so yes, it's strict recoverable also, but in the option it is saying ki recoverable. Yes, it is recoverable also, it's strict recoverable। और अगर आपका शेड्यूल strict recoverable है, already in cascadeless and recoverable। और check for when you make a precedence graph not getting cycle, you are not getting cycle। सर कैसे? आपको यहाँ सिंपल डायरेक्टली दिख रहा है बेटा, यहाँ T1 से T3 बनेगा एज, और एक T3 से एक T1 से T2 बन जाएगा। और आपका बाकी क्या है, देखो साइकिल चेक करना है तो देखो किसी दो ट्रांजेक्शन के बीच में साइकिल हो रही है। इधर देखिए आप, इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। T1 और T2 के बीच में साइकिल बन रही है, नहीं, यहाँ ओनली एक एक्स है, यहाँ रीड एक्स है। T2 से T1 हो सकता है, T1 से T2 नहीं जा रहा है। अब T1 T2 और T3 के बीच में देखो, T2 से T3 है लेकिन T3 से T2 नहीं है। अब इधर देखो T1 से ये रीड है, कोई दिक्कत नहीं है, और T4 से कहीं एज नहीं जाएगी, तो नॉट गेटिंग साइकिल, तो यू कैन से तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। आप क्या बोल सकते हो माय डियर स्टूडेंट? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। हालांकि अपन इसका प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपको असाइक्लिक आएगा, बट आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली दिख रहा है बेटा कि T4 तो सबसे लास्ट में ही है,
T4 से तो कोई एज जा ही नहीं रही है, और T1 T2 के बीच में देख लिया, T2 से T1 नहीं हो रहा है, T1 से T3 है लेकिन T3 से T1 नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ डेटा आइटम Y और Z है, तो इसलिए आपको साइकिल, इवन साइकिल भी ड्रॉ, यानी प्रेसिडेंस ग्राफ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हो। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप इसका प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हो, आपको असाइक्लिक में साइकिल नहीं आएगी। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बट नॉट रिकवरेबल, रॉन्ग, not conflict, no beta, it is wrong. S is conflict serializable and recoverable, my dear. So C is the correct answer, because here you are getting the given schedule, no uncommitted read, so it's recoverable and it is cascadeless, and it is also, and also it's strict recoverable, because not uncommitted read and write is also not there before commit. Okay, जैसे कि आप देख सकते हो राइट के बाद, कमिट के बाद ही राइट हो रहा है, राइट, WOW केस भी नहीं है, नो WW केस एंड नो WW केस, नो WW, तो also you can say strict recoverable. So my dear student, C is the correct answer for this question. ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आ रहा है, बिकॉज साइकिल नहीं आएगी। मैंने प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन आप वैसे ही चेक कर सकते हो, ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आपको दिख रहा है साइक्लिक आएगा कि T4 से जा नहीं रहा है, T3 और T2 में नहीं होगा, बिकॉज ये डेटा आइटम वाई पे काम कर रहा है, T3 और T2 में है लेकिन T1, T3 और T1 में, लेकिन T1 T3 में नहीं है, T2 से T3 है लेकिन T3 से T2 नहीं है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, और अपने पास ये रिकवरेबल भी है, कैस्केडलेस भी और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल भी है, लेकिन ऑप्शन में कैस्केडलेस और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल नहीं था, ओनली रिकवरेबल था। तो अपन ये यहाँ ये बोल सकते हैं कि शेड्यूल इज बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड रिकवरेबल, माय डियर। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप सो यू गेट इट। थैंक यू एवरीवन।